آج ہم آپ کو بہت ہی پرانے زمانے کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھی، نہایت ہی خوبصورت اور پاکیزہ۔ ہر جمعے کو غریبوں کو مفت میں کھانا کھلایا کرتی، صبح اٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتی۔ اس گاؤں میں جتنی بھی یتیم بچیاں رہتی وہ اس کی شادی کا سارا خرچ اٹھایا کرتی۔ اس نے اپنے گاؤں میں ایک بڑی سی مسجد بنوائی، لیکن شادی کی دوسری رات ہی فوت ہو گئی۔ اس کے قبر پر 3 بلی آ کر بیٹھ گئی، پنجے مارتی چیختی اور اس کے آنکھوں سے آنسو گر پڑتے۔ ایک روز جب ایک پتا نے اپنی بیٹی کی قبر کھولی، آیت بہت ہی امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ آیت کے پتا بہت ہی پیسے والے تھے۔ ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہونے پر اور اتنے سارے پیسے ہونے پر بھی کبھی بھی پیسوں کی نمائش نہیں کی۔ وہ ہر سمے سر پر دوپٹوں میں رہتی۔ اس کے پتا جھاڑو برتن کے لیے ملازم رکھے تھے، لیکن وہ کھانا اپنے ہاتھوں سے خود بنایا کرتی تھی۔ اس کے پتا بزنس کیا کرتے تھے، لیکن دینی تعلیم میں زیادہ سمے بتاتے۔ وہ دین کی بہت تعلیم رکھتے تھے۔ وہ ہر سمے مسجد کے حافظ کے پاس بیٹھے رہتے اور اس سے تعلیم حاصل کرتے اور گھر آ کر اپنی بیٹی آیت کو بتایا کرتے۔ آیت بھی دینی تعلیم میں بہت دلچسپی رکھتی تھی۔ ریحان کی بہت عزت تھی اس گاؤں میں۔ ان کے بہت سارے فلیٹ تھے شہر میں، لیکن اس کو اپنے پیسوں پر ذرا بھی گھمنڈ نہیں تھا۔ اب آیت 22 سال کی ہو چکی تھی۔ اس کے پتا اس کے لیے رشتے ڈھونڈ رہے تھے۔ ریحان کے دوست اکرم کو جب یہ بات پتہ چلی، اس نے اپنے بیٹے دانیال سے آیت کا رشتہ بھیجا۔ ریحان اس رشتے پر بہت ہی خوش ہوا۔ اس نے بیٹی آیت کی شادی دانیال سے کر دی۔ ایک رات سب کچھ اچھے سے گزر گیا، لیکن دوسری رات آیت کو ہارٹ اٹیک آ گیا اور وہ فوت ہو گئی۔ جب یہ بات ریحان کو پتہ چلی تو ریحان اپنی بیوی رخسانہ کو ساتھ لے کر سسرال پہنچے۔ سارے خاندان والے حیران تھے، کیونکہ آیت کو اس سے پہلے کبھی کچھ نہ ہوا تھا۔ ابھی ابھی تو شادی ہوئی تھی اور انتقال بھی ہو گیا۔ پاس پڑوس کے لوگ نہ جانے کتنی باتیں بنا رہے تھے۔ ریحان بولا، میری بیٹی کی اتنی ہی عمر لکھی تھی، وہ اپنے وقت پر چلی گئی۔ آیت کی ماں اپنی بیٹی کا فوت کا سنتے ہی بری طرح صدمے میں چلی گئی۔ سبھی لوگ انہیں سنبھال رہے تھے۔ ریحان مردوں کے درمیان غم زدہ بیٹھا تھا۔ ریحان اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ کر اس کی آنکھیں بھر آ رہی تھی۔ اس نے کتنے لاڈ اور پیار سے اسے پالا تھا۔ آیت کے غسل اور کفن کا انتظام کرنے کے بعد گھر والوں نے ریحان کو بلایا تاکہ پتا اپنی بیٹی کو آخری بار دیکھ لے۔ دانیال کی شادی کو ابھی ایک ہی دن ہوئے تھے، لیکن وہ اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ وہ تو کمرے میں اکیلا بیٹھا رو رہا تھا۔ جب کسی نے اسے نہیں دیکھا تو سبھی نے اسے ڈھونڈنا شروع کیا۔ تبھی گھر والے دانیال کے پاس آ کر بولے، چلو بیٹا ایک بار اپنی بیوی کو دیکھ لو۔ ایک ہی دن میں اتنی محبت۔ وہ اپنی بیوی کو دیکھ کر رونے لگا۔ ابھی تو اس نے اپنی زندگی کی شروعات کی تھی اور نہ جانے کتنے سارے خواب دیکھے تھے۔ اپنی بیوی کو آخری بار رخصت کرنا اسے بہت ہی عجیب لگ رہا تھا، لیکن ان دونوں نے سارے غم سہ لیے۔ جنازے کو کندھا دے کر جنازے گاہ کی طرف بڑھے۔ ریحان اپنی بیٹی کی آخری رسم کر کے سسرال پہنچا تو پتہ چلا ریحان کی بیوی کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ سبھی لوگوں نے انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا دیا ہے۔ ریحان بھاگتا ہوا ہاسپٹل جا پہنچا، کیونکہ اس دنیا میں اب اس کی بیوی کے سوا اس کا کوئی نہ تھا۔ ریحان کی بیوی رخسانہ اپنی بیٹی کے بہت ہی قریب تھی اور وہ یہ غم سہ نہ پائی۔ اس نے بھی اس دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ اب تو ریحان کی زندگی ہی مانو ختم ہو گئی۔ وہ ہاسپٹل میں ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ دانیال نے اس وقت اپنے سسر کو بہت ہی سنبھالا۔ رخسانہ کے جانے کے بعد وہ پوری طرح سے ٹوٹ گیا۔ اس نے سارے رسم پورے کیے۔ اب اسے دوبارہ اپنی بیٹی اور بیوی کی قبر پر جانے کی ہمت ہی نہ ہو رہی تھی۔ اب وہ ہر وقت اپنے گھر میں اکیلا تنہا بیٹھا رہتا،
झाड़ू बर्तन करने वाली मुलाजिम खाना बना दिया करती और रेहान खा लेता। एक दिन दानियाल रेहान के पास आया और कहने लगा, आयत की कब्र पर 3 बिल्ली आकर पंजे मारती है और सारे वाक़यात सुनाई। यह सुनकर रेहान परेशान हो गया और उसी वक्त अपने दामाद के साथ अपनी बेटी की कब्र पर जा पहुंचा। जैसे ही वह पहुंचा 3 बिल्ली दौड़ती हुई आई, पंजे मारने लगी और जोर जोर से रोने लगी। कब्र पर बगल में ही रुखसाना का भी कब्र था, लेकिन उस पर कोई भी बिल्ली ना थी। बिल्ली को देखकर रेहान ने उसे भगाने की कोशिश की। वो मुसलसल भाग जाती लेकिन फिर आ जाती। यह सब देखकर रेहान जल्दी से अपनी बेटी की कब्र पर सूरह यासीन की तिलावत करने लगा, क्योंकि उसे सूरह यासीन मुजवानी याद थी। आयत को भी याद थी और वह दिन में कई बार पढ़ लिया करती थी। फिर कुछ देर बाद तीनों बिल्ली अपने से चली गई। रेहान और दानियाल घर वापिस आ गए। दूसरे दिन रेहान दानियाल के घर आ गया। दानियाल को साथ लेकर अपनी बेटी और बीबी की कब्र पर जा पहुंचा। इन दोनों को आते देख बिल्ली दौड़कर आती, पंजे मारती और जोर जोर से रोने लगती और आंखों से आंसू गिर पड़ते। दोनों को यह बातें बहुत ही परेशान करने लगी। रेहान दानियाल के गले लगकर रो पड़ा और कहने लगा, न जाने मेरे जाने के बाद यह तीनों बिल्ली मेरी बच्ची के साथ क्या करती होगी। रेहान अपनी बेटी और बीबी की कब्र को ध्यान से देखता। दानियाल अपने ससुर को ऐसे रोता देख बोला, ऐसा करता हूँ, आयत की कब्र को पक्की करा देता हूँ या टाइल्स लगवा देता हूँ, फिर ये बिल्ली आकर पंजे नहीं मारेगी। बेटा, कब्र को पक्की कराना या टाइल्स लगवाना गुनाह है। अब इन दोनों को यह बात परेशान कर रही थी, कहीं ये बिल्ली कब्र को खोद ना दे। अब रेहान के बिजनेस में भी काफ़ी लॉस होने लगा। अब उसे दिन रात यह बातें सताने लगी। मेरी बेटी इतनी पाकीज़ा और नेक दिल थी, फिर ये बिल्ली क्यों मेरी बेटी की कब्र पर आती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी कब्र पर बिल्ली को ऐसे पंजे मारते नहीं देखा। काफ़ी दिन हो गए थे। अब रेहान अपने बिजनेस को भी देखने लगा, लेकिन बार बार उसे अपनी बेटी का ख्याल आता। उसने सोचा क्यों न अपनी बेटी की कब्र पर कांटेदार झाड़ी रख देते हैं, बिल्ली नहीं आएगी। उसने सारी बातें दानियाल को बताई। वो दोनों तो रोज कब्र पर जाते ही थे। उसने कुछ कांटेदार झाड़ी ली और कब्र पर रख दिया। दोनों का रोज कब्र पर जाना मामूल बन गया था। रेहान यासीन की तिलावत करता, दानियाल छोटी सी कुरान पाक लेकर जाता और उसकी तिलावत करता। अब दोनों कई घंटे बैठकर ऐसे ही तिलावत किया करते। बिल्ली इन दोनों को देखकर कब्र पर रखी झाड़ियों के चारों तरफ घूमती। रेहान अब बिल्ली को भगाना छोड़ दिया और बोला, मेरी बेटी और बीबी को दफनाने के में 1-2 दिन का ही फासला है, फिर मेरी बेटी के कब्र पर बिल्ली क्यों रोती है। मन में ख्याल आता अपनी बेटी का कब्र खोल कर देखूं, लेकिन वह अपनी बेटी का कब्र खोलना नहीं चाहता था। बिल्ली को नज़रअंदाज भी कितने दिन किया जा सकता था। अब रेहान का दिल बहुत ही बेचैन और परेशान रहने लगा। रात में भी उसे नींद नहीं आती और टहलता रहता। एक रात वैसे ही बेचैनी की हालत में टहल रहा था। जब बेड पर गया तो कैसे नींद आ गई पता ही नहीं चला। रात में रेहान ख्वाब देखता है, एक टैंकी पूरा पानी से भरा हुआ है और आयत उस पानी में डूब रही है। बहुत परेशान है और कुछ बोल नहीं पा रही है, हाथ पैर इधर उधर मार रही है। उस वक्त रेहान की आंखें खुल गई और उसका पूरा शरीर ठंड से कांपने लगा। आंखों में आंसू भर आए और सोचने लगा, मेरी बेटी बहुत ही नेक और अल्लाह वाली थी। किसी को भूखा देखती तो फौरन खाना खिला दिया करती। हर रोज सूरह यासीन की तिलावत किया करती। सारा दिन अपनी बेटी के बारे में सोचता रहता हूँ, इसलिए मुझे यह ख्वाब आया है। वह उठा और रेडी होकर ऑफिस चला गया। शाम में कब्र पर गया तो फिर तीनों बिल्ली दौड़ती हुई आई, जोर जोर से रोने लगी और आंखों से आंसू बहने लगे। रेहान को अपनी बेटी का ख्वाब याद आ गया। उसने पेड़ से एक लकड़ी तोड़ी, उन तीनों बिल्ली को मारकर भगाने लगा। इतना मारने के बाद भी वह तीनों बिल्ली वहीं पर बैठ गई।
आंखें लाल हो गई और जोर जोर से रोने लगी। उन तीनों बिल्ली पर रेहान को दया आ गया। उसने वहीं पर डंडे फेंक डाले और अपने घर आ गया। रात में जब वह सोया तो फिर वो ही ख्वाब आया। टैंकी में भरा हुआ पानी होने की वजह से वह बेहोश पड़ी थी और रेहान बाहर खड़ा सब देख रहा था। रेहान की आंखें खुली तो वह घबरा गया और सोचने लगा, मैं इस सच्चाई की गहराई तक कैसे पहुंचूं? रेहान जिस इमाम से दीनी तालीम की जानकारी लिया करते थे वो अपने घर गए हुए थे। रेहान उस इमाम के आने का इंतजार करने लगा। पता चला कि 2 दिन बाद वह मस्जिद आ जाएंगे। बिल्ली को इतना मारने के बाद अब वह डर चुका था। उसने सोचा इमाम साहब से मिलने के बाद ही अब कब्र पर जाऊंगा। खैर से 2 दिन निकल गए। अब इमाम साहब मस्जिद आ गए। इमाम के आने की खबर सुनते ही रेहान वहां जा पहुंचा। इमाम साहब को सारी परेशानी बताई। 3 बिल्ली की बातें सुनकर इमाम साहब बोले, रेहान को ही समझाया वो जानवर है जो नासमझी में ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तुम कुछ कांटेदार झाड़ियां लाकर अपनी बेटी की कब्र पर फैला दो ताकि बिल्ली वहां ना पहुंच पाए। उन्होंने बताया कि मैं तो पहले ही यह सब कर चुका हूँ। फिर उन्होंने बिल्ली को मारने वाली बातें बताई और जब ख्वाब का जिक्र किया तो इमाम साहब चौंक गए। बिल्ली की बातें और 2 रात एक ही ख्वाब का सुनकर इमाम साहब सोच में मुब्तला हो गए और बोले, ख्वाब 2 तरह के होते हैं, एक शैतान की तरफ से आया हुआ और एक अल्लाह की तरफ से होता है। इमाम साहब बोले, शायद यह अल्लाह की तरफ से इशारा हो या फिर शैतान तुम्हें बहका रहा है, इसलिए तुम 2 रात इंतजार करो। अगर 2 रात एक ही ख्वाब आए तो फिर मेरे पास आना, तब तक मैं इस मसले का हल सोचता हूँ। रेहान घर वापस आ गया और इमाम साहब से बातें करके तसल्ली हो गई। अगले रात फिर वो ही ख्वाब देखा तो बेचैन हो गया, लेकिन इमाम साहब की बातें याद आई 2 रातें। वह तैयार होकर अपने ऑफिस के काम से निकल गया, लेकिन दिन भर बेचैनी सा महसूस हो रहा था और कोई भी काम में मन नहीं लग रहा था। चौथी बार उसने वो ही ख्वाब देखा तो बेचैनी से आंखें खुल गई। आंखें खुली तो अजान की आवाज़ आ रही थी। मन और भी बेचैन हो गया कि सुबह का ख्वाब सच होता है। जल्दी से उठा, मुंह हाथ धोकर मस्जिद जा पहुंचा। वजू करके नमाज अदा की और इमाम साहब के फारिग होने का इंतजार करने लगा। नमाजी जाने लगे तो इमाम साहब के पास चला गया। इमाम साहब, मैंने फिर से वो ही ख्वाब देखा। बहुत ही बेचैनी से रेहान ने इमाम साहब से कहा, इसका कोई हल बताएं ताकि मेरी बेटी अपनी कब्र में सुकून से सोए और मुझे भी वह ख्वाब परेशान ना करे। इमाम साहब कुछ सोचते हुए बोले, अब इसका आखिरी हल यही है कि कब्र खोद कर देखा जाए। अगर खुदा ना खास्ता कब्र में अल्लाह का अजाब हो, अजाब आया हुआ है तो हम चाह कर भी कब्र खोल नहीं सकते, क्योंकि हमें अल्लाह की तरफ से इजाज़त नहीं मिलेगी। लेकिन अगर कोई और वजह होगी तो हम कब्र खोल कर देख लेंगे और शायद फिर कोई हल भी नज़र आ जाए। इमाम की बातों से रेहान कांप गया। अपनी बेटी की कब्र पर अल्लाह की तरफ से नाजिल हुए अजाब का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। रेहान ने सारी बातें दानियाल को बताई। दानियाल भी मस्जिद आ गया। तीनों मिलकर कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। जाते समय रेहान के कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। दानियाल ने रेहान को संभाला और तीनों कब्रिस्तान पहुंच गए। रेहान बार बार दुआ कर रहा था, या अल्लाह, मेरी बेटी की कब्र में कोई मसला हो लेकिन अल्लाह का अजाब ना हो। रेहान ने इमाम साहब को बताया, मेरी बेटी बहुत ही नेक थी। उसे तो सूरह यासीन मुँह ज़बानी याद थी। वह तो दिन में कई बार सूरह यासीन की तिलावत किया करती थी। उसने सारी ज़िंदगी नेक काम ही किए। इमाम साहब बोले, दिलों का राज सिर्फ अल्लाह जानता है और बड़े से बड़ा गुनाह माफ़ करने वाला है, छोटे से छोटे गुनाह पर सख्त पकड़ करने वाला भी है। इन तीनों के पहुँचते ही तीनों बिल्ली कब्र पर जा पहुँची। कब्र पर झाड़ियाँ थी तो बिल्ली कब्र के चारों तरफ घूमने लगी। इमाम साहब बोले, पहले इन झाड़ियों को कब्र पर से हटाओ। दानियाल ने जल्दी से कब्र को झाड़ियों से साफ किया। बिल्ली कब्र पर चढ़ गई और खोद
खोदने लगी। रेहान ने एक पत्थर उठाया बिल्ली को मारने के लिए। इमाम साहब बोले, उन्हें मारना मत, हो सकता है उन्हें अल्लाह ने हुक्म देकर भेजा हो, इसलिए आराम से उन्हें हटाओ और जिस जगह पर वह पंजे मार रही है वही जगह खोद कर देखो। इमाम साहब की बात पर दोनों ठिठक गए और एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। रेहान बोला, बेटा तुम देखो, मैं दुआ करता हूँ। बिल्ली जहाँ पर पंजे मार रही थी, दानियाल ने बिल्ली को हटाकर वहीं पर खोदना शुरू किया। तीनों बिल्ली एक तरफ आकर आराम से बैठ गई और देखने लगी। दानियाल दिल में दुरूद पाक की बिर्त करता कब्र खोद रहा था। जब वह गहराई में पहुंचा तो उसे बहुत जोर का झटका लगा। वह मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चीख मारता हुआ पीछे की ओर जा गिरा। दानियाल की चीख से रेहान का शरीर कांपने लगा। रेहान और इमाम साहब ने एक दूसरे का हाथ जोर से पकड़ा, आगे बढ़े और कब्र में बने गड्ढों को झांकने लगे। इमाम साहब और रेहान सूरह यासीन की बिर्त करने लगे। दानियाल के आंखों से आंसू बह रहे थे और आंखें लाल हो गई थी। दोनों मंजर देखकर कांप रहे थे। रेहान जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, मेरी बच्ची इतना दर्द झेलती रही, मुझे कुछ खबर नहीं हुई। रेहान अपनी बीवी और बेटी का कब्र हर रोज देखता था, लेकिन आज पहली बार उसने अपनी बेटी का कब्र देखा। इतना भयानक मंजर था जिंदगी का। अपनों को आराम और सुकून का बिस्तर देने वाले लोग अपने प्यारों की मौत पर कितना बेबस हो जाते हैं। रेहान तीनों बिल्ली के सामने जाकर बैठ गया और उन्हें देख रहा था और सोच रहा था, मुझे पहले दिनों से सहारा देने की कोशिश कर रही थी। उस बिल्ली की वो मार याद आ रही थी जब वो बिल्ली को डंडे से मारता जा रहा था और तीनों बिल्ली वहीं पर बैठ गई, जोर जोर से रोने लगी और आंखें लाल हो गई। इमाम साहब पास आए और बोले, क्या तुमने कभी महसूस किया है तुम्हारी बेटी की कब्र को खोद कर किसी ने यह हरकत की हो? रेहान बोला, मैं रोजाना बिना नागा अपनी बेटी की कब्र पर आ रहा हूँ, लेकिन मैंने इस कब्र पर कभी कोई तब्दीली नहीं देखी। ये बिल्ली भी मुझे देख कर ही यहाँ आती है। मैं इतना इसे भगाने की कोशिश करता लेकिन यह नहीं भागती। मेरे जाने के बाद मुझे नहीं पता यह बिल्ली यहाँ रहती है या चली जाती है। रेहान की बातों पर इमाम साहब हैरान हो गए और बोले, ऐसा भी नहीं हो सकता कि कब्र खोले बगैर यह सब क्या गया हो जो तुम्हारी बच्ची के साथ कब्र में उल्टी सीधी हरकतें की गई है। इमाम साहब बोले, तुमने अपनी बच्ची को अपनी निगरानी में कब्र में उतारा था। रेहान बोले, मैं और दानियाल एक साथ ही थे। हम दोनों चाहे जितना भी गमजदा थे, लेकिन मेरी बच्ची को कब्र में उतारा जा रहा था। मैं वहाँ मौजूद था, इसलिए इसकी कोई गुंजाइश नहीं थी। तब तक यह हरकत कर दी गई थी। इमाम साहब ने उसी वक्त पुलिस को बुलाने को कहा। रेहान का एक दोस्त एसपी था, उसने उसी वक्त उसे फ़ोन मिलाया और फ़ौरन से वहाँ एसपी आ गया। एसपी ने रेहान को दिलासा दिया कि वो जल्द से जल्द मुजरिम को पकड़ लेगा। एसपी ने कब्रिस्तान के चारों तरफ पुलिस तैनात कर दिए। 5 दिनों की निगरानी के बाद मुजरिम पकड़े गए। गांव में एक जवान लड़की का इंतकाल हो गया। जवान लड़की के जनाजा को लेकर आए। रात में 3 लोगों ने जवान लड़की की कब्र को देखकर खोदने लगे। पुलिस जो कब्रिस्तान में छिपी हुई थी उन लोगों ने पकड़ लिया। एसपी ने रेहान को तसल्ली दी, अब कब्रिस्तान में कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं होगी। रेहान अपने घर गया और सोचने लगा, आखिर कौन थे वो लोग। उसके सामने बार बार वो ही मंजर नजर आ रहा था। उसने अपनी बेटी की कब्र पर 2 गुड़िया देखे जो छोटी छोटी थी, सफ़ेद कपड़ों में लिपटी और खून लगा हुआ था और उसके जिस्म में 2 बड़ी बड़ी सुएं चुभी हुई थी। ना जाने उन दोनों गुड़ियों को उन तीनों ने मुजरिम ने मेरी बेटी की कब्र में क्यों रखा। इन तीनों मुजरिमों की वजह से मेरी बच्ची अपनी कब्र में बेचैन पड़ी हुई थी। रेहान ने इमाम साहब की मदद से वो दोनों गुड़िया निकाल तो लिए थे, लेकिन उसके अंदर की बेचैनियाँ और परेशानियाँ खत्म नहीं हो रही थी। उसे रह रह कर यह अफसोस हो रहा था, अगर ये तीनों बिल्ली कब्र खोदने की कोशिश ना करती और मुझे सहारा ना देती तो, और मैं ख्वाब ना देखता तो कुछ समझ ना आता। शाम में फिर रेहान इमाम साहब के पास आई और कहने लगा, मेरी बेचैनियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही है।
قبر میں پھر بہضب کر کے میری بچی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ امام صاحب بولے فکر مت کرو، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ قبر کی نگرانی یہی ہے کہ ہم اپنے پیاروں کی قبروں پر جایا کریں، فاتحہ اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ قبروں کو لاوارث چھوڑ دینے والوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ وہ بولے تم بھی روزانہ اپنی مرحوم بیوی اور بیٹی کی قبر پر جاتے رہا کرو، پھر تمہاری بچی کی قبر کو کوئی بھی نہیں چھیڑے گا۔ امام صاحب بولے یہ سب کالا جادو کرنے والی کی ایسی حرکت ہے، اور کالا جادو ہمارے اسلام میں سخت حرام ہے۔ امام صاحب بولے یہ تینوں بلی شاید تمہاری بچی کی قبر کو کھود کر ان میں گڑیا رکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ شاید بار بار قبر کو کھود کر تمہیں اشارہ دے رہی تھی۔ امام صاحب بولے خوش نصیب تو تم ہو جو تمہیں اللہ کی طرف سے اشارہ ملا۔ ریحان روتے ہوئے بولا میری بیٹی بہت ہی نیک تھی، اس لیے شاید اللہ نے اس کی بے چینی ختم کر دی۔ ریحان کو اب اس بات کی فکر ہو رہی تھی کہ اس نے اپنی بیٹی کی قبر سے گڑیا تو نکال دیا، لیکن کتنے لوگوں کو خبر نہیں ہوتی ان کی بیٹی ماں بہنوں کے قبروں پر لوگ ایسی گڑیا رکھ کر چلے جاتے ہیں۔ اپنے مرحوم پیاروں کی قبر پر جایا کریں، فاتحہ پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اپنے مرحوم پیاروں کی قبر پر جایا کریں، کیونکہ ہمیں اسی کی طرف لوٹ آنا ہے۔ دوستو آپ کو اگر کہانی پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔